starting. Greetings to everyone present here. I welcome you all to this webinar on resume building with Professor Supriya Agarwal, conducted by Digi Shakram. Many of you are new here, so let me give you a brief introduction about what we do here at Digi Saksham. Digi Saksham is an initiative of SEMS Welfare Foundation which provides access to learning resources and conduct digital scaling awareness derives, providing the next generation of learners the skills they need to thrive in a digital economy. Talking about today's webinar, the event will cover the basics of the topic resume building and important steps to make your resume stand out from the file submitted. Ma'am Supriya Agarwal will also guide us about different steps and techniques to enhance our resume. Supriya Agarwal is an academician and teaches finance to students of MBA and PGDM program. She also mentors the youth in the field of placements and career development. She brings with her an overall experience of industry and academy of 15 years. She has recently started with her YouTube channel at the Red Career Speaker, where she guides the freshers and mid-level managers. She, without a doubt, is probably the best person to educate you on the topic of effective resume building. Now, I will request ma'am to take over from here. Thank you so much, Amitesh. That was a very warm welcome. Thank you, Digi Saksham and SCMS for inviting me here to delivering the note. A very warm good evening to everybody present here. I would request the audience to please be interactive because that's how it's going to be more learning even for me also to add on to my experience from your various questions which you will be putting on. All right. I have few questions to break the ice. Amongst the audience, why do we make a resume? Can anyone answer? Ma'am, to get the good job and All right. ये बेसिकली रेज्यूमे हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन का काम करता है रिक्रूटर्स के पास. आप तो पहुंच नहीं जाते हो इंटरव्यू पैनल तक. The point is that whenever a job comes either in your campus, newspapers, LinkedIn or any electronic media, आप सबसे पहले अपना रेज्यूमे सेंड करते हो. We also call it CV at times. तो स्टूडेंट्स अपना रेज्यूमे सेंड करते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं रिक्रूटर्स के सामने. नाउ what does a resume do? It does not gives you a job. ये जॉब नहीं दिलाता है आपको. जॉब आपको जो आप फाइनल परफॉर्मेंसेस करोगे वो चांस मिलने के बाद, ये आपको उस चांस को इंक्रीज करने के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए और आप फर्दर राउंड्स के लिए सेलेक्ट हो जाओ. फर्दर राउंड्स में आप जैसा परफॉर्म करोगे, वेदर इट इज ग्रुप डिस्कशन, वेदर इट इज पर्सनल इंटरव्यू, वो आपकी फेट डिसाइड करेगा कि आपको फर्दर जॉब मिलेगी कि नहीं. तो ये एक आइस ब्रेकिंग का काम करता है हैंड पिक करने के लिए कि क्या कैंडिडेट को हम आगे लेके जाएं या नहीं लेकर के जाएं. अब आपका सीवी रिक्रूटर के पास पहुंचा तो एक एवरेज अटेंशन स्पैन, सपोज मेरे पास 200 सीवी हैं और मुझे एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो एक एवरेज एज पर रिसर्चेस, जो एक मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई बच्चा आंसर शायद ना करे, एक एवरेज टाइम स्पैन रिक्रूटर का सीवी शॉर्टलिस्ट करने के लिए 6 से 7 सेकंड का होता है. As per researches, I am not saying that. These are probable researches which have been conducted. तो डेटा के बेसिस पे this time has been evaluated. तो 6 से 7 सेकंड से ज्यादा एक रिक्रूटर एक एम्प्लॉयर सीवी को नहीं देता. तो 6 से 7 सेकंड है आपके पास इंप्रेस करने के लिए एम्प्लॉयर को. तो सीवी कैसा होना चाहिए उस फॉर्म में, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? 6 से 7 सेकंड के लिए रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी अट्रैक्टिव, सारे कीवर्ड्स होने चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि एक पेज के अंदर वो तुरंत देखे ग्लैंस में. He should stick to your resume for 6-7 seconds and your resume should force the recruiter and the employer to go further and read it and extend the time duration of it. ये काम होता है कि हम कैसे रेज्यूमे को अपने इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि हम एक एम्प्लॉयर को रोक सकें उसके ऊपर 6 से 7 सेकंड के बियॉन्ड रुकने के लिए, ताकि वो डिटेल में हमें देखे और हमें पिक अप. द फ्लो ऑफ द सेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. जो मेजर हेड्स होते हैं फ्रेशर्स के व्यू पॉइंट से, हम उनको डिस्कस करेंगे. पहले मैं हाईलाइट कर दूंगी व्हाट आर द ब्रॉड हेड्स, देन अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ ईच हेड्स. उन हेड्स की क्या रेलेवेंस है और आप कैसे एक प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाने के बाद उन हेड्स के अंदर काम करके 2 साल या 3 साल में अपने सीवी को बिल्डअप कर सकते हो. नाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिल्ड अपॉन द हेड्स इन द रेज्यूमे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन लर्न हाउ टू ड्राफ्ट करियर ऑब्जेक्टिव. करियर ऑब्जेक्टिव हमारा फॉरमोस्ट
क्राइटेरिया होता है किसी भी सीवी में रिक्रूटर्स का टाइम स्पैन को बढ़ाने के लिए, वो हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो हम सीखेंगे. देन वी लर्न हाउ टू राइट एजुकेशनल सर्टिफिकेशन सेक्शन, देन रेलेवेंस ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप इन रेज्यूमे, डिफरेंस बिटवीन स्किल्स एंड इंटरेस्ट. अक्सर बच्चे आते हैं हम लोगों के पास, वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि स्किल्स और इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस उन्हें एक माइनर डिफरेंस होता है जो कि शायद पता नहीं होता है. तो वी नीड टू कैटेगोरिकली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. Then how to gain leadership experience. Then facts on referencing section and a few resume formats I'm going to share with you all and few bonus tips in the last. So beginning up with the first, ये हमारे एक broad parameters हैं जिस पर हमारा रेज्यूमे बेस्ड होता है फ्रेशर का. अगर वर्किंग एक्सपीरियंस वाला पर्सन होता है तो वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, रेस्ट माइट रिमेन द सेम एंड विद फ्यू चेंजेस ऑफ एड ऑन्स. तो हम एक फ्रेशर के व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेंट्स की डिटेल्स होती हैं टॉप साइड पे, देन कम्स द करियर ऑब्जेक्टिव्स, देन द वर्क एक्सपीरियंस. कभी कभी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम में 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चे होते हैं एंड एट टाइम्स मोर एक्सपीरियंस इज देयर, दे आर लेसर इन नंबर बट एट टाइम इट हैपेंस. Then comes your education section, then comes your certification section, then comes your internships and life project section, then your leadership skills will come. फिर आपका आता है स्किल्स एंड इंटरेस्ट आता है, फिर लास्ट में आपका रेफरेंसेस आता है. ये रेज्यूमे में कैसे आएगा ये लास्ट में आपको. अब आता है नंबर 1, एप्लीकेंट डिटेल. एप्लीकेंट डिटेल के जाने से पहले आप में से सबके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए. I was about to again ask this question, किसके पास है किसके पास नहीं है, but I'm telling it to you now कि आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल मस्ट है. बिकॉज जैसे रेज्यूमे एक हार्ड कॉपी होती है जो कि रिक्रूटर के पास और एम्प्लॉयर के पास जाती है, वैसे ही लिंक्डइन आपका एक डिजिटल रेज्यूमे होता है जो कि एक्सेसिबल टू ऑल द एप्लीकेंट्स होता है. और आजकल एवरी रिक्रूटर, एवरी जॉब एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जाके आपको सर्च करते हैं, वो डिजिटल प्रेजेंस आपकी चेक करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल यू हैव मेड, व्हाट आर योर लाइक्स एंड इंटरेस्ट, आप किस तरीके के पोस्ट को लाइक कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, आप किस तरीके के थॉट्स शेयर कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, वो ये सब देखना चाहते हैं. तो आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल, सोशल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर ड्राफ्टिंग अ रेज्यूमे. तो अगर आपके पास नहीं है तो गो बैक आफ्टर द वेबिनार, व्हेनेवर यू गेट द टाइम, मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल. अब आता है आपका ये कैंडिडेट का अबाउट द कैंडिडेट. क्या अबाउट द कैंडिडेट में पहले भी कुछ टाइम पहले तक हम एड्रेस भी डालते थे, घर का एड्रेस डालते थे, या हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल का एड्रेस डालते थे. अब उस चीज को अगर आपने अपने रिज्यूमे में इंक्लूड किया है तो प्लीज उसे हटा दीजिएगा. ऑलवेज पुट इन अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी, देन योर मोबाइल नंबर एंड योर लिंक्डइन यूआरएल. बिकॉज आपका एड्रेस की जरूरत तब होती है जब आपका एम्प्लॉयमेंट फाइनल हो जाता है. उसके पहले योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर और एड्रेसेस ऑन विच योर रिक्रूटर्स आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. एंड मेक श्योर प्लीज कि आपका जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो वो बहुत ही प्रोफेशनल हो, या तो आपके कॉलेज ने आपको ड्राफ्ट करके दिया हो, और अ वेरी प्रोफेशनल वन, नॉट अ वेरी हेवाय काइंड ऑफ अ थिंग which talks about your maybe in the name of a pet or maybe synaptic angel like that. इस तरीके के फनी प्रोफाइल्स नहीं, वेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल, उस तरीके का आप ईमेल आईडी ऐड करिए यहाँ पर. देन योर मोबाइल नंबर. अगेन अक्सर ऐसा होता है हम पुराना ही फॉर्मेट रखा रहता है, वही उठा करके हर जगह भेज देते हैं. तो कभी कभी होता है नंबर्स चेंज हो जाते हैं, पेरेंट्स का पड़ा हुआ है, आपका नंबर खराब हो गया है, आपको दूसरा डालना है, आपका चोरी हो गया, आपको दूसरा डालना है. तो प्लीज बी केयरफुल while updating these details. किसी भी जॉब में रेज्यूमे भेजने से पहले इस सेक्शन को जरूर, क्योंकि अगर रिक्रूटर आपको सीवी आपके पसंद भी कर लिया और आप तक अप्रोच नहीं कर पाया, then there is no use of sending the resume. And this section is very important. All the sections are important, but this section is important to contact you and your LinkedIn URL. LinkedIn का URL नहीं है तो प्लीज बना लीजिएगा. That shows how much aware you are and वो रिक्रूटर को आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पहचानने में हेल्प कर. Then we go ahead with the career objective section. अब करियर ऑब्जेक्टिव के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं. करियर ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों का यूज होना चाहिए, which you can calculate. अगर हम कैलकुलेट करते हैं वर्ड्स वाइज तो it will come around 30 to 40 words approximately. उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. और उसमें आपको फर्स्ट पर्सन का यूजेज नहीं करना है. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, अस जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है. तो पहला डोंट हो गया कि पहला डू हो गया कि 2 से 3 लाइनों का यूजेज करिए करियर ऑब्जेक्टिव में. और
Do not use the first person words over there like I, we and us. Now, how do we draft a career objective? We will see it. ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है और बहुत मजेदार है ये कि अक्सर हम लोग एक ही लाइक व्हेनेवर आई वाज टीचिंग द पीजीडीएम और एमबीए स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे चेंज ही नहीं करते थे करियर ऑब्जेक्टिव। एक जो करियर ऑब्जेक्टिव चलता आ रहा है वो सारी जॉब के लिए चलता जा रहा होता था। एंड इफ यू गेट होल्ड ऑफ द रेज्यूमे देन यू सी दिस resume rejected on what ground? Because the career objective was not aligned as per the requirement of the job. तो हमें अपने करियर ऑब्जेक्टिव को हर जॉब के हिसाब से चेंज करना है और कैसे करना है हम देखते हैं। पहले तो हम ये सीखेंगे कि कैसे हमें करियर ऑब्जेक्टिव को ड्राफ्ट करना है। अब आप मैं पीछे जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, हाईली मोटिवेटेड सेल्फ ड्रिवन कैंडिडेट परस्यूइंग पीजीडीएम इन फाइनेंस looking for a job in credit research to use my analytical skills to add to the business of your firm and thereby adding more value to my skills and experiences. 2 लाइन में 30 से 40 वर्ड्स में किस तरीके से हमने से यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं? यहाँ पे कीवर्ड्स है हाईली मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन, क्रेडिट रिसर्च। आप जॉब जो ढूंढ रहे हो क्रेडिट रिसर्च की ढूंढ रहे हो। अब सपोज करो आपके कैंपस में जॉब आती है फाइनेंशियल एनालिस्ट की और आपने यही वाला सीवी उठा के भेज दिया जिसमें क्रेडिट रिसर्च लिखी है, तो क्या सीवी सेलेक्ट होगा आपका? नहीं होगा, बिकॉज हियर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब ऑफ क्रेडिट रिसर्च और जॉब आई है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, तो आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। देन टू यूज माय एनालिटिकल स्किल्स टू एड ऑन टू द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड देयरबाय एडिंग टू योर ओन एक्सपीरियंसेस। अब हम इसे कैसे ड्राफ्ट? इनको हमने 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला पार्ट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग ट्रेट एंड मेंशन एजुकेशन। अपनी खूबियों को पहचानिए, अपने को वर्ड्स के पैकेज में लपेटिए और उसके बाद अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करिए। देन नंबर 2, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? नंबर 3, add your skills or quality or value, and number 4, your expectations. तो जब इन चारों पार्ट्स को हम जोड़ेंगे हमारा करियर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कैसे बनेगा? पहला पार्ट, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग ट्रेट एंड मेंशन योर एजुकेशन। अब आप क्या आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेट हो सकता है? कोई बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है, डिलिजेंट हो सकता है, कोई बहुत हाईली मोटिवेटेड हो सकता है, किसी जिसको कभी कोई डिप्रेशन ना आता हो, कोई सेल्फ ड्रिवन हो सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बंदा काम करना नहीं छोड़ेगा, वो सेल्फ ड्रिवन हो गया, फोकस्ड हो सकता है। तो इस तरीके के वर्ड्स एक कैंडिडेट को डिफाइन करते हैं। तो जो आपका ट्रेट हो आप उसे पिकअप करिए जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो। If you want, you can draft right now and you can show it to me in the last if you want that. So you could be hardworking, you can be highly motivated, you can be self-driven, you can be diligent. To pick up any word और उसके साथ आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप परस्यू कर रहे हैं या कर चुके हैं उसे एड ऑन करिए। लाइक हियर आई हैव पिक्ड अप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और पीजीडी इन फाइनेंस, व्हाटएवर यू कैन पिक अप। तो हमारा जो पहला पार्ट है करियर ऑब्जेक्टिव का वो बन जाता है हाईली मोटिवेटेड एंड सेल्फ ड्रिवन कैंडिडेट परस्यूइंग पीजीडीएम इन फाइनेंस। ऑलराइट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा बन गया। अब हम जैसे जैसे पार्ट्स को ऐड करेंगे मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। सेकेंड पार्ट में करियर ऑब्जेक्टिव है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब ये व्हाट आर यू लुकिंग फॉर जो है ये हर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ चेंज होता चला जाएगा। हर कोर्स में स्पेशलाइजेशंस होती हैं। लाइक लेट मी पिक अप एमबीए पीजीडीएम एग्जांपल। हमारे पास फाइनेंस 2 चीजों के ऑप्शन होते हैं, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस आप ले सकते हो, फाइनेंस एंड मार्केटिंग ले सकते हो, फाइनेंस एंड एचआर ले सकते हो, लाइकवाइज मार्केटिंग एचआर ले सकते हो, मार्केटिंग फाइनेंस ले सकते हो, मार्केटिंग ऑपरेशंस ले सकते हो। तो आपका क्या कॉम्बिनेशन है आपको उस हिसाब की जॉब्स मिलती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो रादर। अब 2 स्पेशलाइजेशन है, लेट्स पिक अप फाइनेंस एंड लेट्स पिक अप मार्केटिंग। एक जॉब आती है क्रेडिट रिसर्च के लिए, तो मैंने वहां पर आपने वहां पर लिख दिया लुकिंग फॉर अ जॉब इन क्रेडिट रिसर्च। लेकिन अगर जेडी आता है लुकिंग फॉर अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो आप यहाँ पर अपना लुकिंग फॉर चेंज कर दोगे। अगर आपका मार्केटिंग है, यू आर इंटरेस्टेड फॉर फाइनेंशियल सेल्स ऑल्सो, तो आप यहाँ पर अपना टाइप चेंज कर दोगे, लिख दोगे लुकिंग फॉर अ जॉब इन बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जैसे जैसे जेडी चेंज होगी वैसे वैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर चेंज होता चला जाएगा। अदरवाइज अगर मिसमैच होगा तो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। तो हमने सेकंड पार्ट भी ड्राफ्ट कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव का। यहां तक क्लियर है सबको? एनी क्वेरीज टिल हियर? ऑलराइट, हाईली मोटिवेटेड एंड सेल्फ ड्रिवन कैंडिडेट परस्यूइंग पीजीडीएम इन फाइनेंस
लुकिंग फॉर अ जॉब इन क्रेडिट रिसर्च, क्योंकि ये जेडी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्रेडिट रिसर्च के लिए आएंगे। गोइंग फॉर द थर्ड पार्ट इन करियर ऑब्जेक्टिव, एड योर स्किल एंड क्वालिटी वैल्यू। अब तुम्हें ये ढूंढना है कि इस जॉब के साथ तुम्हारे पास क्या स्किल है जो कि इस जॉब में जाने के चांसेस, सीवी सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ा देंगे। अब क्योंकि क्रेडिट रिसर्च है तो आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस होने चाहिए जो बाद में आप प्रूव कर सको, या बिजनेस डेवलपमेंट की अगर जॉब आई होती तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप डाल सकते थे। नाउ सिंस इट इज यहाँ पर क्रेडिट रिसर्च, तो we have said that want to use my analytical skills to add on to the business of your firm. अब third part भी हमारा ready है, highly motivated, self-driven candidate pursuing PGDM in finance, looking for a job in credit research to use my analytical skills to add on to the business of your firm. And now the fourth part, which will complete the career objective, your expectations. ये भी हर job के साथ change होगा. Wish to develop more rounded set of skill values and improve my job capability and increase my experience, like that you can add it. तो आपका यहाँ पर पूरा career objective बन चुका है 4 टुकड़ों में। Highly motivated, self-driven candidate pursuing PGDM in finance, looking for a job in credit research to use my analytical skills to add on to the business of your firm and thereby adding more value to my skills and experience. तो बच्चों, हर जेडी के साथ अपने करियर ऑब्जेक्टिव में आप क्या देख रहे हो रेज्यूमे में, और आपके पास क्या स्किल्स हैं उस जॉब से मैच करती हुई, इसको जरूर चेंज करते रहिएगा। वरना अगर स्किल्स का मिसमैच होगा या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर का मिसमैच होगा, तो वहीं पर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा एट द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ। सो बी वेरी केयरफुल, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, ये डिसाइड करेगा कि क्या रिक्रूटर आगे जाएगा आपकी सीवी पे कि नहीं जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? All right. अब हमारा आता है फॉलोइंग सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, तो करियर ऑब्जेक्टिव्स के बाद पहले वर्क एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद एजुकेशन आएगा। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेम रहेगा जैसे मैं अभी एजुकेशन का आपको बताने वाली हूँ। तो एजुकेशन हो या कोई भी चीज हो, जब आप अपना रिज्यूमे बना रहे होते हैं तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर एज नए से पुराने की तरफ, जो आप अभी लेटेस्ट कर रहे हो उसको सबसे पहले डालो, एंड उसके बाद जो आपका लास्ट है, से फॉर एग्जांपल एजुकेशन में योर 10th वुड बी द लास्ट डिग्री, लास्ट क्वालिफिकेशन व्हिच वुड बी आस्क्ड फॉर विल बी पिक्ड अप। तो पहले यहाँ पर आपने, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो योर फर्स्ट एजुकेशन कंपोनेंट वुड बी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें आपके कॉलेज का नाम आएगा, देन उसमें आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, देन आपने कितना, सपोज करिए 3 टर्म्स में, तो 3 टर्म्स में आपका ग्रॉस सीजीपीए और परसेंटेज कितना है, एक लाइन में ऐड करके, और या किसी भी फॉर्मेट में आप अपने ईयर को मेंशन करिए, और बहुत स्टाइल से फॉर्मेटिंग करके करिए ताकि ज्यादा स्पेस ना हो। फिर आप सिमिलरली अपने ग्रेजुएशन का मेंशन करोगे, फिर आप अपनी स्कूलिंग का मेंशन करोगे, एंड एवरीवेयर यू विल हाईलाइट योर मार्क्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं अच्छे होते हैं, हाईलाइट करने वाला एक नहीं होते हैं कुछ क्लासेस के। अगर इट इज द केस इन 1 or 2 क्लासेस, प्लीज डू नॉट बी हेजिटेंट इन पुटिंग इट ओवर हियर, और इफ यू डोंट वांट टू राइट डाउन तो फिर कंप्लीटली हटा लीजिए, बाकी सारी चीजों को पुट इन कर दीजिए। बट अगर अच्छे मार्क्स हैं देन प्लीज डेफिनेटली हाईलाइट, ऑलराइट। लेकिन आप इस चीज से बच नहीं पाओगे, आप मेन पैनल में अगर पहुंचते हो तो यू शुड गो अप विद अ रीजन बैकिंग अप व्हाई देयर वाज Sensex kind of a trend in your marks or something like that. So always be prepared for those questions. And ऐसा नहीं है कि अगर marks don't define your career ahead, to be honest. I've seen many candidates that अगर marks beginning में या कहीं बीच में कम हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जॉब ना लगे, जॉब लगती है, because वो आपकी current hard working ability के ऊपर डिपेंड करती है, current personality के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि जो आपने 4 साल पहले। Certifications. How many of you know about certifications? Come on now, break the ice. I want anyone to speak up over here. Ma'am, maybe serial number of the certificate is? Yes. Very good. The serial number of the certifications. आपने कोई certifications किए हैं सर? No, मैंने नहीं किए हैं, ऐसे ही कहा है। Oh, all right. Anybody else who has done any certification? अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे finance के हैं? Anyone who has done NISM 5A, because वो एक basic protocol होता है करने के लिए. Anybody?
who's done NISM 5A series? All right, anybody from finance, तो वो आप कर लो तो ज़्यादा better है because your probability of getting shortlisted gets easy. Certifications क्या होते हैं? देखो, एक आपका basic program होता है जो आप कर रहे होते हो. Certification add-on courses होते हैं. एक हफ्ते का हो गया. आजकल जब से ये ऑनलाइन ट्रेंड आया है कोविड की वजह से, तब से जैसे कोर्सेरा के ऊपर there are be it Harvard, be it Yale University, be it University of Michigan, ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज के साथ आ रही है कोर्सेरा के ऊपर, edX के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर सर्टिफिकेशंस होते हैं. देन देयर आर इंडियन सर्टिफिकेशंस आल्सो, ISB हैदराबाद देता है, IIMS देता है. देन आपका NISM के सर्टिफिकेशंस हो जाते हैं. तो आपको अपने इंटरेस्ट के साथ अपने स्पेशलाइजेशन के तहत कुछ सर्टिफिकेशंस करने जरूरी होते हैं, बिकॉज वो आपके नॉलेज को जरूर एड ऑन करते हैं और आपको एक टेक्निकल एक्सपर्टीज देते हैं आपके पर्टिकुलर एरिया में. जैसे आपने फाइनेंस लिया, सिंस आई एम फाइनेंस, आई पिक अप फाइनेंस ऑल द टाइम, तो आपने अगर NISM 5A लिया तो वो एक आपको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक्सप्लेनेशन देगा कि क्या म्यूचुअल फंड में होता है, कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कैसे सेल होते हैं, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज, व्हाट इज NAV, एवरीथिंग अबाउट दैट. सिमिलरली ब्रांडिंग के ऊपर अगर आप मार्केटिंग में हो तो कर सकते हैं. सिमिलरली बिग डेटा के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के नाम मैंने मेंशन करे हुए हैं. ये मैंने सारे ही लिखे थे जितने मेरे को दिख रहे थे कोर्सेरा के ऊपर. 1 सेकेंड. तो ये देखिए, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल एनालिसिस, देन द फ्यूचर ऑफ पेमेंट टेक्नोलॉजीज ऑथराइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये मैंने भी किया हुआ है. दिस इज ऑन कोर्सेरा, इट्स अ वेरी गुड कोर्स. Fintech is something new. Then brand and product management, then market research and consumer behavior, big data, data sciences. अब क्या होता है, जब तक आपने स्पेशलाइजेशन नहीं करी होती है तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर में यूजुअली स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर रहे होते हैं, या कुछ लोग कर लेते हैं बट कुछ बच्चे जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. तो हम लोग सभी कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देयर इज नो हार्म इन डूइंग एवरीथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर कमिंग टू अ कोर्स टू लर्न. तो आपने जो भी सीखना है सीख लिया, लेकिन सेकेंड ईयर में जब फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स होते हैं और जॉब्स आना शुरू होती है, तब आप ये सारे सर्टिफिकेशन इकट्ठे नहीं डालोगे. आप हैंड पिक करोगे कि किस प्रोफाइल की जॉब आ रही है, उस तरीके के सर्टिफिकेशंस को हाईलाइट करना. उसके पीछे रीजंस है, आई टेल यू व्हाई नॉट टू डू दैट. पहली चीज तो ये, अगर आप सब डाल दोगे, बिग डेटा, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, फोकस नहीं दिखेगा, नंबर 1. दूसरी चीज ये कि जितने सारी चीजें डालोगे, पैनल में अगर सारे सेक्शंस के लोग बैठ गए तो आपसे हर चीज के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. तो आप वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें डालिए जो कि आपके जो JD आया है उसको कॉम्प्लीमेंट करे. उसके आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ. बी स्पेसिफिक, प्रिसाइज, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो भी बहुत ही मजे मस्ती में निकल जाए और आप प्रिपेयर भी कर सको. अगर आप 2-4 ही सिर्फ फोकस करके फाइनेंस के लिए करके जाओगे तो आप पढ़ के भी जा सकते हो रादर. ऑलराइट, तो आप करिए सब, लेकिन जब आपका जॉब आए तो जॉब के हिसाब से अपने सर्टिफिकेशन को पुट इन करिए रेज्यूमे में. तो ये सेक्शन भी, अब एजुकेशन वाला पार्ट तो फिक्स है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट सर्टिफिकेशंस विल बी सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल इज कमिंग अपॉन यू. फिर अब आता है हमारा इंटर्नशिप, लाइफ प्रोजेक्ट्स, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, लीडरशिप स्किल्स. अब ये आप किसी भी प्रोफेशनल प्रोग्राम में, या नहीं भी है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है, तो आजकल बच्चे इतने अवेयर होते हैं या होना चाहिए कि आप इन चीजों को डेवलप करिए. आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th के बाद आप अपने आप इंटर्नशिप, लाइफ प्रोजेक्ट्स को अरेंज करिए. आप अगर PGDM प्रोग्राम में है, MBA प्रोग्राम में है, या किसी और BBA वगैरह में है, तो कॉलेज वाइड माइट अरेंज फॉर यू, नहीं है तो अरेंज इट फॉर योरसेल्फ. क्या रेलेवेंस है, हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं. लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप? आई प्लीज रिक्वेस्ट फॉर एन आंसर फ्रॉम यू ऑल. किसी ने किया है लाइफ प्रोजेक्ट यहाँ पर? इंटर्नशिप्स क्या होती हैं? Ma'am, internship is like performing a task under a company. Very good. Performing a task under a company. Great. Thank you so much for answering. And दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Anybody? ड्यूरेशन का डिफरेंस हो सकता है. Internships usually are for a longer duration. Like जो हम लोग समर इंटर्नशिप पे जाते हैं, डिसर्टेशंस करते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने की भी हो सकती है. लाइफ प्रोजेक्ट्स 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक का भी हो सकता है. अब लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली? If you people are from India or abroad, whatever, suppose you've got Walmart in abroad, or suppose you've got Big Bazaar in India. अब Big Bazaar में heavy sale कब होती है students? Big Bazaar में heavy sales कब होती हैं?
मैसिव भीड़ उनके पास कब होती है? फेस्टिवल्स के टाइम पर होती है। बिग बाजार में इंडिया में रिपब्लिक डे के पास, इंडिपेंडेंस डे के पास सबसे सस्ते दिन आते हैं कि नहीं आते हैं? और इफ यू गो and if you go to abroad, then there is in Walmart also some deals are there. उस समय उनके पास एम्प्लॉय की शॉर्टेज होती है। 7 दिन का होता है बिग बाजार का। द इंडियंस will over here will be able to relate to it. So now they all over India they hire B school children or BBA children from campuses और उनको हफ्ते 10 दिन के लिए लेकर के जाते हैं एज एम्प्लॉइज। पहले उनकी एक दिन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको कैश काउंटर पे भी एक्सपीरियंस दिया जाता है, प्रोडक्ट सेक्शन पे भी एक्सपीरियंस दिया जाता है, जो अनाउंसमेंट्स होते हैं कि ये इतना डिस्काउंट है, हर तरीके का काम उनसे कराया जाता है। तो ये एक 7 से 8 दिन का लाइव प्रोजेक्ट होता है जो कि स्टूडेंट्स को करवाया जाता है और ये स्टूडेंट्स के लिए एक वर्क एक्सपीरियंस की तरीके से काम करता है। अब आपने क्या किया कि सपोज करिए आप गए एक हफ्ते के लिए और आपने 1 लाख रुपए की सेल्स करके दे दी अपने मैनेजर को, तो ये आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि जब मैं एक हफ्ते के लिए लाइव प्रोजेक्ट पे गया था या गई थी, when I had gone for 1 week time for the live project, this much was the business that I had given to Big Bazaar during my internship. अब आपके लिए एज अ स्टूडेंट एक हफ्ते में 1 लाख का बिजनेस दे देना बहुत बड़ी बात है। ये आपको आगे की जॉब्स के लिए प्रिपेयर करेगा आपके एम्प्लॉयर की नजर में कि यस दिस कैंडिडेट इज गुड, इसने एक हफ्ते में इतना काम किया तो ये हमारे लिए भी आगे कर लेगा। ऑलराइट, अब इंटर्नशिप आती है। इंटर्नशिप इज अ मैंडेटरी प्रोग्राम जो कि कॉलेजेस करते हैं, या आपको इंडस्ट्री में बैंक से भेज देंगे, आपको कॉर्पोरेट से भेज देंगे, मार्केटिंग फर्म से भेज देंगे, वहां पर आपको उनका काम करना पड़ता है। रादर फ्रेशर्स को बहुत लोग एंटरटेन नहीं करते हैं, लेकिन अभी आपका काम है कि आप अपने आप को कितना सिंसियरली प्रोजेक्ट करते हो और आप कितना काम अपने बॉसेस की ड्राइव कर सकते हो। जितनी हेल्प करते चले जाओगे उतना आपके सर्टिफिकेट पे आगे बढ़ चला जाएगा। अब कुछ इंटर्नशिप्स और लाइव प्रोजेक्ट्स पेड होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट बेस्ड होते हैं। तो अगर पेड नहीं भी है और आपके सर्टिफिकेट पे वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है एज अ स्टूडेंट, तो नथिंग लाइक इट, गो फॉर दैट। तो दिस इज द फॉर्मेट। आपके सर्टिफिकेशंस के बाद इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, देन कुछ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आपसे आपके टीचर्स ने कोई रिसर्च वर्क करवाया है तो आप उसको ऐड करिए यहाँ पे। फिर आता है आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस। लीडरशिप एक्सपीरियंस क्यों कंपनीज देखती हैं? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लीडरशिप एक्सपीरियंस? लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है और कंपनीज क्या देखना चाह रही होती हैं? ऑलराइट, लीडरशिप एक्सपीरियंस बेसिकली आपको डिफाइन करती हैं कि आप कितने अच्छे प्रोफेशनल आगे चल के बन सकते हो। यहाँ पे आप कैसे 2 साल, सपोज यू आर इनटू अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो आपको डे 1 से इन सब चीजों पे वर्क करना है। कैसे वर्क करना है? कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एनुअल फेस्ट होते हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब आप बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल CSR का हो गया, बहुत सारी क्लब्स एंड कमिटीज होती हैं। तो अब आप उसमें कितना आगे से आगे बढ़ के काम करते हो, क्या क्या आपने अपने टेन्योर में काम किया है उन पर्टिकुलर कमिटीज में, आपने क्या आप टीम लीडर थे, अगर टीम लीडर नहीं थे तो क्या आप टीम मेंबर थे, आप उन सब चीजों को यहाँ पर 1 और 2 लाइंस में हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज आपके यहाँ कोई एनुअल फेस्ट है और वहां पे आप स्पॉन्सरशिप लेकर के आए हो, अगेन यू आर सेलिंग योर फेस्ट टू सम कॉर्पोरेट और सम पीपल आउट देयर एंड यू आर ब्रिंगिंग फंड्स फॉर योर कॉलेज। तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन स्किल जज करने का तरीका हो गया मार्केट में कि आप कैसे कर रहे हो, या आप अपनी लीडरशिप स्किल में डाल सकते हो। फिर आपने कोई इवेंट कंडक्ट किया है, आपने कोई CSR प्रोजेक्ट कंडक्ट किया है, आपके अंडर में अगर वो चीज हुई है या आपने एक्टिवली उस चीज को पार्टिसिपेट किया है, तो आप यहाँ पर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस व्हेन आस्क्ड इन द इंटरव्यू पैनल। तो ये सारी चीजें आपको, आप कितने प्रोफेशनल हो, ये हाईलाइट करेंगी। लाइव प्रोजेक्ट्स, अच्छा, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स का एक और रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब कर रहे हो तो आपका CV तो देखो बिल्डअप हो रहा है, और साथ ही साथ आपका इंडस्ट्री में कनेक्ट डेवलप होता जा रहा है, जो कि आपको चल करके आगे जॉब भी दे सकता है। अगर आपने इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया, योर बॉस इज हैप्पी, देन देयर आर चांसेस कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होने वाला है वो आपको प्लेसमेंट ऑफर कर दे और आपका उसी जॉब में, इफ यू वांट दैट, आपका उसी जॉब में, उसी कंपनी में जॉब भी लग सकता है। तो बी वेरी सिंसियर एट एवरी स्टेप व्हेनेवर यू वर्क। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट ऑलरेडी। Ma'am, I have a question. Yes, please. Ma'am, is leadership experience like doing volunteering jobs under university or colleges? Is it like that? You can add to that, yes. देखिए वो CSR voluntary job, it's in a way adding to your personality, right?
You can anyways, आपने voluntary, आपने suppose blood donation camp किया है, right? That will come under the leadership category that you arrange, you coordinated with hospitals or you coordinated with bringing the donors at the college और आपने इस तरीके की एक्टिविटी करवाई है, तो ये आपका एक लीडरशिप ज़ील दिखाता है कि आप कितना आगे बढ़ के काम. Please do that. And in case you have any queries, you can write to me on careerspeak.insights@gmail.com. मैं अभी chat में share कर दूँ. Then any other question, please? Is it clear to you? Ma'am, I have another question. Yes, please. Ma'am, it's like in our colleges or university, there are workshops and they do provide some of the projects that if we can complete that, there will be like certifications. Where we can add that certification and which section? Will it be under on life project or something else? It will not be life project. देखो, life project is a work experience when you are actually working with them, right? Now, what kind of project? Can you give me an example of a project? Any, if you remember that? Ma'am, I'm from CS department, so basically it's like designing a website with HTML and CSS. Now it will come here, my dear. Academic projects. Can you see this academic project section? Yes, ma'am. Please add it here. देखो, internship and life project are on the job training. आपने जाकर, जैसे बैंक में आप जा रहे हो, और if you're a CS, you are working under a CA, आप वहां पर अगर कोई काम कर रहे हो, तो that will be your internship and life project category, right? अब आपको उन्होंने कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो वो आपके लर्निंग का पार्ट है, ठीक है? उसमें that will be coming under the academic project category. So please mention it over here. Like suppose if I have given to my student, go analyze 10 best mutual funds. उनकी होल्डिंग क्या है, उनका NAV क्या है, उनका ट्रेंड क्या है, who are the fund manager. That is an academic project. That is a learning phase, which will help you if you will implement that into the industry during the life project time. तो academic project में आएगा जो आपने ठीक है? Yes, ma'am. All right. Any other question? Thank you so much for asking question. It becomes very lively basically. Now comes skills and interest. अब यहाँ पर हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा. स्किल्स क्या होती हैं, इंटरेस्ट क्या होते हैं. इंटरेस्ट कुड बी आवर हॉबीज. हॉबी को आप कैसे मेंशन कर रहे हो? हॉबी प्लीज इंश्योर कि आप कोई भी अगर हॉबी डाल रहे हो तो वो आपके पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्टिवली रेजोनेट करे. ऑलराइट, तो उसको मेंशन करिए. स्किल्स हो गया गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको MS एक्सेल आता है, आपने वो डाल दिया, या MS पूरा आपका MS प्रोफिशिएंसी, MS वर्ड की आपको प्रोफिशिएंसी है, पावर पॉइंट अच्छे से आता है, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं. कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको आती है, आप डाल सकते हैं. कोई आपने फाइनेंस में टेक्निकल टैली का कोर्स किया है या कोई और कोर्स किया है, आप उसको यूज कर सकते हैं. तो ये आपका स्किल हो जाता है कि आपके एजुकेशन के साथ आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी हैं जो आपके जॉब को कॉम्प्लीमेंट करेंगी. कमिंग टू द इंटरेस्ट पार्ट, इंटरेस्ट इज यू लाइक ट्रैवलिंग. अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो सामने वाला जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर आपके CV में लिखा है यू लाइक ट्रैवलिंग और उसके जॉब में ट्रैवलिंग इज अ क्राइटेरिया, तो सोचेगा बंदे को ट्रैवलिंग पसंद है, तो ही विल नॉट. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए घर छोड़ना मुश्किल होता है. तो इफ यू रिटन यू लाइक टू ट्रैवल, ही माइट आस्क यू, सो यू लाइक टू ट्रैवल, आप कहाँ कहाँ घूमे हो, अब आपको बताना पड़ेगा. सिर्फ फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इन अ रेज्यूमे प्लीज डोंट राइट, क्योंकि तुरंत पकड़ लेगा सामने वाला कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो. ठीक है, तो जो आप करते हो बी वेरी ऑनेस्ट. दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट जो मुझे बताना चाहिए था आपको, कि रेज्यूमे में जो भी लिखिए वो ऐसा लिखिए जो आप हो. किसी और की पर्सनालिटी को रेज्यूमे में मत डालिए. लाइक फ्रेंड का उठाया रेज्यूमे, नाम बदला और दे दिया, ये मत करिएगा, बिकॉज फंसना फिर आप ही को है आगे. राइट डाउन ओवर हियर व्हाट यू आर. जो आप नहीं है वो यहाँ पे मत लिखिए. कम चलेगा, ज्यादा फ्लैम्बॉयंट वे में मत लिखिएगा. अब आपको स्ट्रेंजर्स से कम्युनिकेट करना पसंद है, अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर द एम्प्लॉयर कि बंदे को पसंद है. ही विल नॉट बी हेजिटेंट इन सेलिंग माय प्रोडक्ट टू द कंपनी, या हो सकता है नॉट इवन सेलिंग, अगर ब्रांडिंग करनी है, मीटिंग में जाना है, तो द पर्सन इज रेडी टू ट्रैवल एंड मीट द स्ट्रेंजर्स. कोऑपरेटिव, काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट. अब अगर आप ऐसे वर्ड्स अपने उसमें लिख रहे हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है एग्जाम्पल के साथ. ओके फाइन, मिस्टर सो एंड सो एक्सप्लेन where you were calm, explain where your trait of self confidence is reflected in your personality. ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते. अब आता है हमारा रेफरेंसिंग सेक्शन. रेफरेंसिंग सेक्शन में बताइए हम किस किस का नाम डाल सकते हैं. बताइए, रेफरेंस में हम किसका नाम डालते हैं? क्या मम्मी पापा का नाम डाल सकते हैं रेफरेंस में?
Yes, ma'am. We can use if our father mother is in a job sector, or it's best to use like faculties who knows that person in a good sense. All right, fine. You can use your faculty's name, but never your parents or your relatives or your brother and sister, please. All right. Personal blood relations को कभी भी reference section में मत use करिएगा, because it is expected कि वो आपके लिए कभी गलत नहीं बोलेंगे. समझ रहे हैं बात को? एक ऑथेंटिसिटी आपके कैरेक्टर की, आपकी पर्सनालिटी की एक थर्ड पर्सन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी अगर एक तीसरा पर्सन जो आपको बहुत डिस्टिंक्टली जानता है और वो आपके लिए अच्छा बोल रहा है, तो आपका रिक्रूटर उसको बिलीव करेगा. मम्मी पापा तो बोल ही देंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है. तो keep parents at bay when it's coming to referencing section in the resume. Keep your brother and sister at bay when it's coming to referencing section. Please pick up, either you can pick up your mentors or teachers, but यहाँ पे भरोसे का बंदा भी होना चाहिए. अब आपने किसी अंकल को पिकअप किया, डिस्टेंट अंकल को, आप कर सकते हो. आपने अपने लाइफ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के मैनेजर को पिकअप किया, आप कर सकते हो. आप अपने टीचर को भी पिकअप कर सकते हो. बट जिसको भी आप पिकअप कर रहे हो, आपको पहले उनसे बात करनी पड़ेगी कि आपके पास रेफरेंसिंग चेक आ सकता है. प्लीज स्पीक गुड फॉर मी. और अगर आपको डाउट है कि दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्पीक गुड फॉर यू, प्लीज डू नॉट मेंशन द नेम ऑफ दैट. Any questions? Somebody was saying something. Now I'll quickly move ahead. Time is running. Some important key points. मैं इन key points पे आने से पहले आपको CV दिखा देना चाहती हूँ. CV का फॉर्मेट ये पूरा मैंने जो टुकड़ों में आपको बताया है, ये पूरा इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो. आप इसको ग्रे कर सकते हो, बट प्लीज स्टिक टू black color or maximum blue you can add to the headings. The format for professional CV is black. Students generally black use करें तो ज्यादा बेटर है. टाइम्स न्यू रोमन आप यूज कर सकते हैं या एरियल यूज कर सकते हैं. अच्छा, पेज 1 पेज में रखिए. आप सपोज करिए कि ये आपका 2 पेज में जा रहा है और आपके पास ऊपर स्पेस शिफ्ट करने की जगह नहीं है और जरा सही है, तो यू सेलेक्ट इट ऑल, यू गो ऑन द प्रिंट सेक्शन, प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए और यहां पर shrink to 1 page. Is it visible to everybody? Just shrink to 1 page. Yes, ma'am. इसको कर दीजिए तो ये आपका एक पेज में सीवी आ जाएगा. बिकॉज यू हैव टू, एज अ फ्रेशर, यू हैव टू कीप योर सीवीज इन वन. उससे ज्यादा नहीं, because you've seen that recruiters have got a time span of 6-7 seconds. No point writing stories over there. Coming back to over here, major lessons. Now, stick to 1 page specifically. ये पहली learning है. In fact, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कहा जाता है प्लीज 1 पेज का सीवी रखिए. बिकॉज जो भी आपको बाद में बात करनी है आप आके कर लो. अगर अनअवॉइडेबल है तो फिर एक्सटेंशंस एंड एक्स्ट्रास के चले जाते हैं. बट फ्रेशर्स have to mandatorily keep this CV to resume to 1 page because anyhow the chances of selection become very less. 200-300 लोग होते हैं CV shortlist करने के लिए, तो उसमें आप जितना क्रिस्प रखेंगे, irrelevant words को हटाइए, फॉर्मेटिंग स्मॉल करिए, क्रिस्प करिए. जो 2-3 पैराग्राफ में आ रहा है उसको कट क्रिस्प करके एक पैराग्राफ में इंग्लिश अच्छे से डिफाइन करके करिए. तो 1 पेज में करना ही करना है हर हालत में, नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट. चेक थॉरली फॉर स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामर एरर. आप लोग वर्ड पे कैसे स्पेलिंग चेक करते हो? F7 प्रेस करते होगे, राइट? F7 कर सकते हो. फ्रेंड्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर टू शेयर योर सीरीज विद फ्रेंड्स. डोंट थिंक कि ये मेरा कंटेंट चुरा लेगा या कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स ऑलवेज लर्निंग बाय शेयरिंग. सो शेयर इट आउट या अपने टीचर्स को दिखा दीजिए. बेस्ट इज F7, डू दैट. Then check for grammar error. Now, हर जॉब में लैंग्वेज का मास्टर बनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सीवी में ग्रामर सही होनी चाहिए. अगर आपको नहीं आती इंग्लिश प्रॉपर, फाइन, एवरी जॉब डजंट डिमांड्स दैट, बट योर resume should be grammatically correct. Now again, for grammar you can take help of a friend who is good in grammar, वो आपका CV चेक कर सकता है. You can take help of your teacher, वो आपका resume चेक कर सकता है. Otherwise, there is one app, I'm sure बहुत बच्चों ने सुना होगा यहाँ पे, there is Grammarly app. Grammarly app में आप अपना पैरा डालते चले जाइए, वो आपको ग्रामर करेक्ट करके दे देगा. लेकिन क्योंकि वो सिस्टम है तो फिर भी एक बार ह्यूमन से एक बार चेक कर. देन वर्ड फॉर्मेट में आप बना तो रहे हो अपना रेज्यूमे, लेकिन अगर रिक्रूटर को या प्लेसमेंट ऑफिस को या कंपनी को भेजना है तो प्लीज वर्ड पे मत भेजना. क्योंकि सपोज मेरे पास विंडोज 8 है, उसके पास विंडोज 10 है, किसी के पास कोई और वर्जन है, तो आपका जो रेज्यूमे का जो फॉर्मेटिंग आपने करी है 1 पेज में, वो बहुत ही अजीब तरीके से पहुंचती है दूसरे के सिस्टम के ऊपर. तो अक्सर आपने कंप्लेंट सुनी होगी कि फॉर्मेट बिगड़ गया, मेरे सिस्टम पे तो ऐसे खुल रहा है, तुम्हारे सिस्टम पे इस तरीके से हो रहा है. तो दिस इज व्हाई, बिकॉज
विंडोज टू विंडोज जो उसके वर्जन्स होते हैं उस हिसाब से वर्ड अपना जो टेक्निकल चीज है, आई होप मेनी टेक्निकल पीपल वुड अंडरस्टैंड हियर, वो चेंज हो जाता है। तो आपको उसका सोल्यूशन क्या है? जब भी आप अगर अपना सीवी भेज रहे हो, रेज्यूमे भेज रहे हो, पहले उसको कन्वर्ट करिए पीडीएफ में, तब उसको फॉरवर्ड करिए। कभी भी किसी भी और फॉर्मेट में रेज्यूमे कभी मत सेंड करिएगा, ऑलवेज इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। देन यूज प्रोफेशनल ईमेल आईडी, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया। Don't use flashy formats and colors. Flashy formats का मतलब होता है कि कर्सिव हैंडराइटिंग मत यूज करिए, रेड, ब्लू, पिंक कलर्स मत यूज करिए, स्पेसिफिकली ब्लैक यूज करिए। मेजर अगर आप करना चाहते हो तो कहीं कहीं पे ब्लू यूज कर सकते हैं, बट जितना प्रोफेशनल ब्लैक लगता है उतना कुछ भी नहीं लगता है। टाइम्स न्यू रोमन एंड एरियल दो बहुत पॉपुलर फॉन्ट्स हैं जिनको आप 10 के साइज में यूज कर सकते हैं, 10 और 11, नॉट मोर। चेंज रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू एवरी जॉब। ये मैंने आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव्स बता रही थी, जब मैं सर्टिफिकेशंस बता रही थी, तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर से रखनी है बच्चों कि जब भी कोई जेडी आती है आपको उस हिसाब से अपने रिज्यूमे को चेंज करते जाना है। ऑब्जेक्टिव भी चेंज होगा, सर्टिफिकेशंस भी चेंज होंगे। फाइनेंस की जॉब आई तो फाइनेंशियल सर्टिफिकेशंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग की आई तो वैसे सर्टिफिकेशंस। तो प्लीज कीप चेंजिंग योर रिज्यूमे। एक ही रिज्यूमे को सब जगह मत घुमाइएगा, रिजेक्शंस होंगे। Then ensure to use keywords in the resume. अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Many firms, the bigger firms basically, वो ATS का यूज करती है। ATS is Application Tracking System. ये क्या करता है? हर जॉब के साथ कीवर्ड आता है। कीवर्ड हो गया जैसे से फॉर एग्जांपल फाइनेंस जॉब, म्यूचुअल फंड कंपनी की जॉब है, दे आर डिमांडिंग NISM 5 ईयर और NISM 10B सीरीज, तो ये सारे कीवर्ड हो जाते हैं। NISM 5A, 10B। अब आपने अगर अपने रेज्यूमे में इन कीवर्ड्स को मेंशन नहीं किया है तो ये सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देगा। अब आपके रेज्यूमे में अगर जॉब में मांगा है NISM 5A, 10B और आपके रेज्यूमे में ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, आपने लिख दिया म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन और आपने NISM 5A नहीं, जबकि हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन आपने नाम कोई और यूज कर दिया, तो सिस्टम नहीं पिकअप करेगा और आपका रेज्यूमे ह्यूमन के पास पहुंचेगा नहीं। तो मशीन स्पेसिफिक अगर स्कैनिंग हो रही है तो कीवर्ड जरूर डालिए अपने रेज्यूमे में ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं। वही चीजों का नाम, टेक्निकल नाम आपने किया होगा, तो जो नाम आपको पता है आप उसको शिफ्ट करके मशीन नेम्स के जरिए डालिए। Always cross check for personal contact details, as I mentioned in the beginning only, कि आप contact details जरूर से check करिए। Functional email ID, functional mobile number should always be the key. Resume पसंद आ गया but they are not able to reach you. Now there are few websites which I just searched for you all कि हम कहाँ पे कैसे बना सकते हैं। एक तो है Google Docs, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि आप कैसे उस पे बना सकते हो। एंड फिर आप वर्ड पे भी देखो, वर्ड तो अपने पास है ही, आप उस पे फॉर्मेटिंग पूरी करके बना सकते हो, लेकिन इस पे ऑलरेडी बने हुए फॉर्मेट्स होते हैं। गूगल डॉक्स पे हो गया, resume.com पे हो गया, novoresume.com, ये 3 वेबसाइट्स हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिस पे भी बनाना है बना लीजिए, बट प्लीज स्टिक टू द ब्लैक फॉन्ट प्लीज। उसमें बहुत फ्लैशी कलर्स है, डू नॉट यूज दैट। One thing before I go to the website for this thing, I have this Career Speak is my new venture, along with my being an academician for MBA PGDM students. And I request to all the students present here that if they want to add on, there are many tips for group discussions, and I'll be coming up with tell me about your section and so on and so forth, everything related to the career development of the youth. So you can subscribe to my channel. I'll share the link in the chat box. Now I'll come to, thank you so much. I'll just share the Google Docs with you all. Okay, so if everyone has any query, you can unmute yourself and ask. I have shared the YouTube link of my channel also, in case if people can go and subscribe it. It will be a great help to everybody. Now just let me tell you one more thing. See, can you see my window of Google this Gmail account? ये Gmail account आपको दिखाई दे रहा है मेरा? Yes, ma'am, it's good. All right. Can you see these 9 dots over here? यहाँ पे क्लिक करो आप लोग, ठीक है? कैसे रेज्यूमे बनाना है Google Docs के ऊपर? I am showing that. आपने यहाँ पे डॉक्स दिखा सबको? Is it visible, students? Yes, ma'am. Just click on Google Docs. It will take you to various formats. अलग-अलग चीजों के फॉर्मेट है, प्रोजेक्ट के भी हैं, आपको रिज्यूमे पिकअप करना है। अब ये देखो यहाँ पे रिज्यूमे के फॉर्मेट्स हैं, कोरल में है, सेरिफ में है, मैंने ये वाला पिकअप किया। दिस लुक्स प्रोफेशनल। ओपन हो रहा है, जस्ट अ सेकंड।
ये देखिए, ये फॉर्मेट है। अब आप इसमें अपनी चीजें ऐड ऑन करते चले जा सकते हो। अब सपोज यू डू नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस, इसे आप कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। You can delete it and you can straight away start from education section. अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 2 चीजें education section में दी हैं, आप add on कर सकते हो। Like you want to add on your PGDM qualification, you do that. You want to add on your graduation qualification, do that. तो इस तरीके से आप अपने resume को Google Document पर बना सकते हो। Now it's over from my side. Thank you so much. Please, questions, please. Thank you, ma'am. I think ma'am has explained very well to you guys. I hope it will be very useful for your career. So thank you everyone for joining, and we look forward to organizing many more webinars as such. So do follow us on our social media to get updating about it. And lastly, I would like to present my thanks to Supriya ma'am for coming to this event and making them so interesting and informative. Thank you so much, everybody. It's a pleasure. And Suhani also, thank you so much.